Hi, dear student. Today we are talking about the phylum Cnidaria या Coelenterata. तो ये phylum is one of the basal phyla. तो आज के लेक्चर में बेसिक फीचर ऑफ Cnidaria, बॉडी वॉल, nematocyst, alternation of generations, maintenance of functions, reproductions और इसी तरीके से ब्रीफली हम जो है क्लास हाइड्रोजोआ, क्लास स्टारोजोआ, क्लास स्काइफोजोआ, क्लास क्यूबोजोआ एंड एंथोजोआ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये हमारी आउटलाइन है जो इस लेक्चर में हम वन बाय वन एकम्प्लिश करेंगे और ये लेक्चर जो है ना बीएससी या नाउ दीज आर द डिफरेंट मेंबर्स ऑफ द फाइलम Cnidaria. देयर इज अ ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ द Cnidarian. कॉमनली आपको ये जेली फिशेस नज़र आ रही हैं, आपने कोरल सुने होंगे, जेलीफिश, हाइड्रा, ये सारे जो है सी एनिमन इससे बिलोंग. Look at these slides. So these all slide refers to the various members of this phylum Cnidaria. The shape of the Cnidarians is that they are radial or biradial. Look at this one. This is the wheel type shape. So most of the Cnidarians have the wheel type shape, that is radial symmetry. Biradial is the modification of radial, in which single plan passing through central axis divide the animal into mirror image. Now the basic is that what is the difference between the radial symmetry and bilateral symmetry is the same way कि bilateral symmetry में animals की जो बॉडी होती है वो डार्सल और वेंट्रल सरफेस में डिफ्रेंशिएट हो सकती है, लेकिन रेडियल सिमेट्री में डार्सल और वेंट्रल सरफेस का कॉन्सेप्ट नहीं है. सेकंड के bilateral symmetrical animals have anterior and posterior end, whereas in radial there is no concept of the anterior and posterior end. उनकी जगह पे हम जहाँ माउथ होता है उसे हम ओरल एंड कहते हैं और अवे फ्रॉम माउथ उसके लिए एबोरल कहते हैं. तो रेडियल सिमेट्री में एंटीरियर पोस्टीरियर की जगह पे दो टर्म होते हैं, ओरल एबोरल यूज होते हैं. So the end of the animal that contain mouth is known as the oral end and opposite end is known as the aboral end. ये यूज करते हैं. Now the main advantage for sedentary animals, क्योंकि ये रेडियल सिमेट्री सेंडेटरी एनिमल में है तो उनकी जो है ना एडवांटेज ये है कि जो रिसेप्टर्स हैं ना वो सारे जो है ना बॉडी के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं और इस आसानी से ऑर्गेनिज्म जो है ना हर डायरेक्शन से जो भी स्टिमुलस आएगी उन्हें रिस्पॉन्ड कर सकेंगे. और आज तक जो है ना 10,000 से ज़्यादा स्पीशीज़ जो है ना डिस्क्राइब की जा चुकी हैं. ज़्यादातर दे आर मैरीन और जो इम्पॉर्टेंट इकोसिस्टम है कोरल रीफ इकोसिस्टम वो मेनली इन जो है ना नीडेरियंस का बना होता है. The main characteristic of the Cnidarian are coelentrates. So first characteristic that we discussed, that they have the radial symmetry are modified as biradial. Second, they are diploblastic, means having two layers, ectoderm and endoderm और टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन में, और इन बिटवीन द एक्टो और एंडो यहाँ जो है ना एक्टो से एपिडर्मिस पैदा होता है और गैस्ट्रो एंडोडर्म से गैस्ट्रोडर्म, उनके बीच में मीजोगुलिया पाई जाती है. एंड फोर्थ कैरेक्टर इज दे हैव द गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, इनमें नर्व नेट पाई जाती है और दे हैव स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड लीडोसाइट सेल और इनका नाम Cnidaria is termed because of the presence of this one.
कि नीडियरन इस वजह इनको कहते हैं बिकॉज इनमें नीडोसाइट सेल होते हैं, और नीडोसाइट सेल के 3 फंक्शन होते हैं। वन इज डिफेंस, सेकेंड इज द फीडिंग, एंड थर्ड फंक्शन इज अटैचमेंट। ये 3 मेन फंक्शन है नीडोसाइट्स के। नाउ we are discussing the body wall and nematocyst of the phylum Cnidaria. As previously we described that Cnidaria possess the diploblastic level of organization, means they have the tissue level of organization. The body is composed of 2 germinal layer, one is known as the ectoderm and other is known as the endoderm. So cell organize into tissue. इनमें पोरिफेरा में तो ऐसा नहीं हो रहा था, पोरिफेरा में सेल वर aggregated together but they are not forming the tissue. यहाँ cell organize into tissue that carry out space function, and all cell are derived from the 2 embryological layer. Ectoderms give rise to the epidermis. आप इस में दे सकते हैं, this layer is known as a epidermis. ये एक्टोडर्म से पैदा होती है, और जो एंडोडर्म से गैस्ट्रोडर्म, ये सारी लेयर जो है ना ये गैस्ट्रोडर्म है, वो किससे बनती है? एंडोडर्म से। इन बिटवीन देम आपको ये नज़र आ रहा है, दिस इज द स्मॉल कैविटी, दैट कैविटी लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम जेली लाइक लेयर है, इसको हम मीजोगुलिया कहते हैं। तो मीन्स एपिडर्मिस और गैस्ट्रोडर्म के बीच में एक जेली लाइक लेयर है, उसे हम क्या कहते हैं? मीजोगुलिया कहते हैं। नाउ सेल्स आर प्रेजेंट इन मीजोगुलिया इन सम नीडियरन्स। कुछ नीडियरन में सेल पाए जाते हैं, लेकिन वो सेल जो है ना इनके अपने नहीं होते, या तो ये सेल एपिडर्मिस से आते हैं या गैस्ट्रोडर्म से, और यही रीज़न है कि इनकी मीजोगुलिया को हम थर्ड लेयर या मीजोडर्म नहीं मानते, कि बिकॉज दे डोंट हैव देयर ओरिजिनल ट्रू cells, so that's why they are the diploblastic. One major kind of cell is the characteristic of this phylum. जैसे हमने कहा कि इस फाइलम का नाम भी किसकी वजह से? नीडोसाइट सेल्स की वजह से। तो ये नीडोसाइट सेल एपिडर्मिस में या गैस्ट्रोडर्म में पाए जाते हैं, और इनमें एक स्ट्रक्चर होती है, उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? नीडी कहते हैं। मीन्स नीडोसाइट possess a structure which called नीडी, और नीडी जो है ना यूज फॉर अटैचमेंट, डिफेंस एंड फीडिंग। Nidae is fluid-filled intracellular capsule enclosing coiled hollow tube. यहाँ आपको ये hollow tube नज़र आ रहा है, तो इनमें fluid-filled जो कैप्सूल है वो निडाई है, and it has operculum covering. उस कवरिंग या लिड लाइक कवरिंग है, उसे हम अपर्कुलम कहते हैं, और इसमें एक सेंसरी स्ट्रक्चर होते हैं जिसे हम नीडोसिल कहते हैं। ये सिलिया जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? नीडोसिल कहते हैं। तो अगेन के नीडोसाइट सेल कंटेन नीडी, और नीडी इज अ fluid filled intracellular capsule, and it has a cilia base covering or cape we call operculum, and it has cilia base structure that's nidosil, और इनको कवर करने के लिए एक अपर्कुलम भी होता है। So stimulus come from this nidosil structure, और ये nidosil स्टिमुलस की वजह से अपर्कुलम खुलता है, और खुलने की वजह से जो ये ट्यूब है इसमें जो मटेरियल है वो डिस्चार्ज होता है, या जो ट्यूब जो है ना डिस्चार्ज होता है। और सारे नीमाटोड्स में और सारे निडेरेंस में 30 इकसाम है निडाई के, और नीमाटोसिस्ट इज आर द
नीमाटोसिस्ट आर द टाइप ऑफ नीडा यूज इन फूड गैदरिंग। के नीमाटोसिस्ट क्या है? एक नीडा का टाइप है जो फूड गैदरिंग के डिफेंस के लिए डिस्चार्ज होता है, और उनमें स्पाइंस भी होते हैं, आर्म्ड स्पाइंस होते हैं जो प्रे को पेनिट्रेट करते हैं। So spines have the hollow tip that delivers the paralyzing toxic। उस स्पाइंस की hollow tip में टॉक्सिक होता है, जब वो टच करता है प्रे को तो उनमें टॉक्सिक जो है ना, टॉक्सिन उनको पैरालाइज करता है। कुछ नीडाई जो अनआर्म्ड होती हैं, still other nidae have sticky secretions that help the animal। मीन्स अगर निडाई में अगर कोई स्पाइनी या टॉक्सिक मटेरियल ना हो जो प्रे को पैरालाइज कर सके, तो उसमें स्टिकी सीक्रेशंस होती हैं जिसके साथ वो प्रे जो है ना वो एंकर हो सकता है, मिल सकता है निडाई के साथ, और इस तरीके से जो है ना वो उनको घसीट करके उनकी बॉडी में, माउथ में लाते हैं। और जैसे मैंने कहा कि देर आर 30 टाइप ऑफ नीडाई, लेकिन एक इंडिविजुअल में 6 या उससे ज्यादा नीडाई हो सकते हैं एक इंडिविजुअल में। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। के नीडियरन पजेज द 2 बॉडी फॉर्म्स। वैसे बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि इनके बॉडी फॉर्म्स को वी कॉल द ज़ॉइड्स। देर आर मेनी टाइप ऑफ ज़ॉइड, जैसे पोलिप, मेडुसा, डिक्टाइलोज़ॉइड, गोनोज़ॉइड, गैस्ट्रोज़ॉइड्स, ये मुख्तलिफ इक़साम में ज़ॉइड के। लेकिन रिप्रोडक्शन के लिए जो मेनली होते हैं वो 2 फॉर्म्स होते हैं, बॉडी फॉर्म्स होते हैं। वन इज नोन एज ए पोलिप, लुक एट दिस इज अ पोलिप, एंड सेकेंड इज नोन एज ए मेडुसा, उल्टा बाउल जैसे स्ट्रक्चर मेडुसा। ओके, सो पोलिप जो है ना, पोलिप यूली इज असेक्सुअल और सीसाइल, एक जगह पे फिक्स होता है और असेक्सुअल रिप्रोड्यूस करता है, और इट अटैच टू सबस्ट्रेट एट द एबोरल एंड। एबोरल एंड जो है ना, ये इनकी ओरल एंड है जहाँ माउथ है, और ये इनके एबोरल एंड सबस्ट्रेट से एबोरल एंड से अटैच होता है, और इनमें टेंटिकल्स पाए जाते हैं। उस टेंटिकल्स की मदद से ये फूड गैदर करते हैं। सेकंड जो टाइप है मेडुसा, वो डायोशस है, मीन्स मेल एंड फीमेल स्ट्रक्चर सेम डिफरेंट होती है, डिफरेंट इंडिविजुअल। फ्री स्विमिंग होता है, ये इन्वर्टेड बाउल शेप इनके स्ट्रक्चर होते हैं, और ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस, क्योंकि इसमें दो मेल और फीमेल का कॉन्सेप्ट आ जाता है, तो ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ज़ॉइड है या सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग बॉडी फॉर्म है। और इनका जो है ना माउथ जो है ना वो बिल्कुल नीचे जो है ना सेंट्रली लोकेटेड होता है, फेसिंग डाउनवर्ड। मीसोगुला इसमें बहुत ज्यादा आती है, बड़ी होती है। द मीसोगुला इज आल्सो एबंडेंट इन दिस वन जेली लाइक लेयर। सो when a Cnidaриan life cycle involves both polyp and medusa, Cnidaриan के लाइफ साइकिल में पोलिप और मेडुसा दोनों स्टेज एक दूसरे को अल्टरनेट करें, तो उसके लिए हम टर्म इस्तेमाल करते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये पोलिप है, पोलिप में बडिंग हुई है, बडिंग से मेडुसा प्रोड्यूस होगा, और एक मेडुसा से फिर वो मैच्योर होगा, एक दूसरे से स्पर्म, और एक स्पर्म मिलकर फर्टिलाइजेशन जाइगोट बनाते हैं, जाइगोट से ब्लास्टुला, ब्लास्टुला से प्लेन्युला, प्लेन्युला से फिर वही जो है ना पोलिप। तो वन जनरेशन गिव राइज अनदर, पोलिप गिव राइज मेडुसा एंड मेडुसा गिव राइज पोलिप। तो इनको हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। हाउ दे मेंटेन देयर फंक्शन, के नीडियरंस में फंक्शन जो लाइफ प्रोसेस होते हैं वो कैसे होते हैं। नाउ the gastrodrum of all Cnidaриan line a blind ending gastrovascular cavity के इनमें लुक एट दिस वन स्ट्रक्चर, माउथ होता, और माउथ ये कैविटी जो है ना सारी यहाँ से ब्लाइंड है, दिस इज द ब्लाइंड गैस्ट्रोवेस्कुलर। और यही कैविटी आप लुक एट दिस माउथ, माउथ और ये सारी जो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है ये ब्लाइंड है।
और इनका दूसरा मतलब दे हैव द सिंगल ओपनिंग बाय विच दे फीड एयर as well as excrete the material. So this digest cavity function in the digestion, cavity का काम digestion भी है, गैसेस एक्सचेंज भी होती है और मेटाबॉलिक वेस्ट जो है ना वो भी डिस्चार्ज होते हैं और गैमीट जो है ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वो भी इन माउथ के या गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के थ्रू जाता है. So food, digestive waste, reproductive stage enter and leave the gastrovascular cavity through the mouth. The food of Cnidaria consists of small crustaceans and some Cnidaria feed on small fishes. कि ये छोटी मछलियां खाते हैं और क्रस्टेशियन आर्थ्रोपोड्स भी खाते हैं. मोरओवर निमाटोसिस्ट इंटेंगल एंड पैरालाइज द प्रे. निमाटोस जैसे प्रीवियस स्लाइड में हमने आपको डिस्कस किया कि उनका काम क्या है, एक तो प्रे के साथ चिपक के जाना, इंटेंगल होना और उसे पैरालाइज करना. और उनमें निमाटोसिस्ट में जो टेंटिकल्स होते हैं उनमें कंट्रैक्टाइल सेल होते हैं और कंट्रैक्टाइल सेल टेंटिकल्स को शार्टन करते हैं और शार्टन की वजह से सारा फूड जो है ना माउथ में आता है. नाउ एज फूड इंटर्स इनटू द गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, तो यहाँ गैस्ट्रोडर्मल ग्लैंड्स होते हैं विच सीक्रेट लुब्रिकेंट म्यूकस एंड एंजाइम. और उस म्यूकस और एंजाइम का काम ये है कि फूड को सोपी ब्राथ में कन्वर्ट करना. कुछ जो है ना गैस्ट्रोडर्मल सेल जो है ना उनको हम न्यूट्रेटिव मस्कुलर सेल कहते हैं जिनकी वजह से फेगोसाइटोसिस होता है. और फूड जो है ना फेगोसाइटोसिस की वजह के बाद जो है ना कहाँ फूड वैक्यूल में एंटर होता है और वहाँ फूड वैक्यूल में डाइजेशन होती है, कंप्लीट डाइजेशन होती है. मोर ओवर न्यूट्रेटिव मस्कुलर सेल जो है ना आल्सो हैव सर्कुलरली ओरिएंटेड कंट्रैक्टाइल फाइबर और जिसकी वजह से जो है ना पैरिस्टलिस्टिक मूवमेंट जो है ना गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में डेवलप होती है. उस पैरिस्टलिस्टिक मूवमेंट की वजह से वो मटेरियल जो है ना ट्रांसपोर्ट होता है. सो ड्यूरिंग द पेरिस्टालसिस मूवमेंट रिंग लाइक कंट्रैक्शन मूव द बॉडी वॉल pushing the content of gastrovascular cavity ahead of them and expelling the undigested material through the mouth. तो पेरिस्टालसिस मूवमेंट की वजह से एक तो फूड ट्रांसपोर्ट होता है सारी बॉडी में, दूसरा जो है ना वेस्ट मटेरियल जो है ना वो एक्सक्रिएट होता है. मोरओवर Cnidaria do not have bones or any structure. They have a skeleton that we call hydrostatic skeleton. पानी का बना हुआ skeleton. उनका मेन काम क्या है, सपोर्ट और मूवमेंट में हेल्प करना. मोरओवर हाइड्रोस्टैटिक skeleton is a water or body fluid और वो जो है ना उनको जो है ना सपोर्ट प्रोवाइड करता है. तो यहाँ जो है ना आप देख सकते हैं जो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है वो ही जो है ना उसमें पानी जो होता है दैट एक्ट एज ए हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन. सर्टेन सेल ऑफ बॉडी वॉल कॉल एपिथेलियोमस्कुलर सेल. कुछ सेल होते हैं जिसको हम कहते हैं एपिथेलियोमस्कुलर सेल. उनका काम क्या है, कंट्रैक्टाइल करना और मूवमेंट में एड करना. When polyp closes its mouth, this one is polyp. ये जब अपना माउथ क्लोज करता है to prevent water from escaping and contract longitudinal epitheliomuscular cell on one side of body, the polyp bend toward the other side of body. ये बेंडिंग का तरीकेकार है. If these cell contract when mouth is open, मीन्स ये दो कंडीशन है. एक तो वही ये एपिथेलियोमस्कुलर सेल कंट्रैक्ट है जब माउथ खुला हुआ है. दूसरी कंडीशन क्या है, बंद है. माउथ बंद होता है तो ये बेंडिंग मूवमेंट में हेल्प करते हैं. जब खुला होता है तो वाटर एस्केप हो जाता है और पोलिप जो है ना कोलेप्स हो जाता है. और इनकी वजह से इस तरीके से ये कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से जो है ना माउथ क्लोजिंग और ओपन की वजह से उनकी बॉडी कंप्रेस होती है और इलांगेट होती है. इस तरीके से उनमें मूवमेंट
होती है, ये लोकोमोट करते हैं, मूव करते हैं, लेकिन ट्रू सेंस में ये ज़्यादा फास्टली लोकोमोट नहीं करते। जो भी ग्लाइड या समर सॉल्टिंग करें तो इस तरीके से हो सकता। नाउ पोलिप यूज द वैरायटी ऑफ फॉर्म्स ऑफ लोकोमोशन, के पोलिप में मुख्तलिफ इकसाम की लोकोमोशन होती है। पोलिप में भी मूव बाय समर सॉल्टिंग। समर सॉल्टिंग उसको कहते हैं वेन फ्रॉम बेस टू टेंटिकल, के टेंटिकल अटैच करके अपना बेस मूव करते हैं, फिर आगे टेंटिकल एंकर करके अपना बेस जो है मूव करते हैं। तो ये मूवमेंट कौन सी होगी? समर सॉल्टिंग मूवमेंट। और दूसरी मूवमेंट जो होती है वो ग्लाइड होती है। तो स्लोली सबस्ट्रेट के ऊपर जो है ना अपना बेस जो है ना मूव करना, उसे हम क्या कहते हैं? ग्लाइड कहते हैं। तो ये पोलिप में समर सॉल्टिंग और ग्लाइडिंग दोनों मूवमेंट होती है। मेडुसा क्योंकि ये फ्री स्विमिंग है, स्विमिंग भी करता है और फ्लोटिंग करता है। सो वाटर करंट एंड विंड जो है ना वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इनकी हॉरिजॉन्टल मूवमेंट की वजह से, लेकिन इनको जब वर्टिकली मूव करना होता है तो वो स्विमिंग की वजह से होती है। और इनमें जो सर्कुलर और रेडियल एपिथेलियल मस्कुलर सेल हैं वो ये जो है ना पल्सेशन क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से जो है ना ये प्रोपेल करता है वाटर को और ये मूव मूव या स्विम करता है। Neurons and nerve cell may be most primitive in the primitive nerve system in the animal kingdom, के इनमें नर्व सेल पाए जाते हैं। और सारे एनिमल किंगडम में देखे जाएं तो नर्व सिस्टम या नर्व लाइक सिस्टम की शुरुआत जो है ना वो कहाँ हो रही है? यहाँ हमारे नीडेरियंस में हो रही है। और नर्व सेल जो है ना ये दे आर लोकेटेड बिलो द एपिडर्मिस नियर द मीजोगोलिया, और ये दे आर इंटरकनेक्ट टू फॉर्म टू डायमेंशनल नर्व नेट। दिस नेट कंडक्ट नर्व इम्पल्स, और जो बॉडी जो है ना जो लोकलाइज रिस्पांस होता है या लोकलाइज स्टिमुलस होते हैं उनको रिस्पॉन्ड करती है बॉडी। नाउ कि कौन सी स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करती है वो डिपेंड अपॉन द जो है ना कि इस कुछ वीक स्टिमुलस होते हैं, कुछ स्ट्रांग स्टिमुलस होते हैं। तो स्ट्रांग स्टिमुलस उसे कहते हैं जिससे पोलिप जो अपनी बिल्कुल बॉडी कंप्लीट बॉडी विथड्रॉ करे, वो स्ट्रांग होते हैं। सेंसरी स्ट्रक्चर्स ऑफ द नीडेरेंस आर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी, कि इनमें सेंसरी स्ट्रक्चर भी होते हैं और उनको केमिकल और टच भी महसूस कर सकते हैं। सेंसरी स्ट्रक्चर आर फाउंड मोर ओवर बॉडी सरफेस के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की जो है ना वो एक्सचेंज होती है, और वेस्ट मटेरियल भी जो है ना इन्वायरमेंट के थ्रू इन्वायरमेंट में डिफ्यूजन के थ्रू जो है ना एक्सचेंज होता है। तो मीन्स बॉडी सरफेस जो है ना इन दोनों तीन चीज़ों में नाइट्रोजन वेस्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को एक्सचेंज करने में बहुत रोल प्ले करता है। मोस्ट नीडेरेंस आर डायोशस, सारे नहीं, मोस्ट मीन्स sexes are separate and separate individual. Sperm and egg are may be released into gastrovascular cavity to the outside of the body, के जहाँ जिस सेल में स्पर्म और एग प्रोड्यूस होते हैं फर्स्ट वो रिलीज होते हैं गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी से कैविटी में, और उसके बाद इन्वायरमेंट में रिलीज होते हैं और वहाँ उनकी फर्टिलाइजेशन होती है। फर्टिलाइजेशन के बाद ब्लेस्टुला फॉर्मेशन होती है जो अर्ली डेवलपमेंट फॉर्म है, और उसमें फिर सेल में माइग्रेट करते हैं। इस तरीके से ब्लास्टुला के बाद जो है ना एक फ्री एक एम्ब्रो एलांगेटेड सिलिएटेड फ्री स्विमिंग लार्वा प्रोड्यूस होता है, जैसे हम प्लेन्यूला कहते हैं। इसी तस्वीर में आप एग, स्पर्म, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद ब्लास्टुला, प्लेन्यूला, ये सिलिया आप इसमें देख रहे हैं। और ये प्लेन्यूला लार्वा जो है ना सबस्ट्रेट के साथ अटैच होगा, और जो है ना उसमें अंदर बॉडी में स्प्लिटिंग होगी, और स्प्लिटिंग की वजह से गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी डेवलप होगी। लेकिन जब ये पोलिप मैच्योर होगा तो इनमें बडिंग इससे बडिंग प्रोड्यूस होगी, बडिंग होगी,
और उस बर्ड से जब वो बर्ड जो है ना डिटेच होगा, सेपरेट होगा पोलिप बॉडी से, तो उसे क्या, उसे जो है ना मेड्यूसा प्रोड्यूस होगा. Now this is the slide which deals with the classification of the Cnidaria. As we discussed के यहाँ 9000, लेकिन मिलर हाल है कि जो लेटेस्ट एडिशन उनके मुताबिक देर आर 10,000 स्पेशीज इन द वर्ल्ड. और नीडेरियंस जो है ना डिवाइडेड इनटू द वेरियस क्लासेस. वन इज नोन एज द क्लास हाइड्रोजोआ, second is known as class Scyphozoa, third class is Starozoa, fourth class is Cubozoa, and fifth class is Anthozoa. ये पांच क्लासेस हैं फाइलम नीडेरिया में. Let's discuss class Hydrozoa. Class Hydrozoa, they are small, लेकिन ये कॉमन नीडेरियंस हैं, फाउंड एवरीवेयर. लेकिन ज़्यादातर जो है ना ये मैरीन वाटर में, मेजॉरिटी ऑफ देम फाउंड इन द मैरीन वाटर. एक जो नीडेरियन का ग्रुप है या एक जो है ना वो फ्रेश वाटर में पाया जाता है, उनके रिप्रेजेंटेटिव फ्रेश वाटर में पाया जाता है. मोस्ट हाइड्रोजन हैव द लाइफ साइकिल दैट डिस्प्ले द अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. के हाइड्रोजोआ में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का कॉन्सेप्ट है. हाउएवर कुछ हाइड्रोजोआ में मेड्यूसा स्टेज जो है ना लास्ट है या रिड्यूस्ड है, और कुछ में पोलिप स्टेज भी स्मॉल होती है. तो लेट्स डिस्कस थ्री मेन फीचर which distinguish the hydrozoa from other cnidaria. One is the presence of nematocyst in epidermis. कि इनमें हाइड्रोजोआ में नीमाटोसिस्ट कहाँ सिर्फ एपिडर्मिस में इसमें पाए जाते हैं. गैमीट्स आर एपिडर्मल एंड रिलीज आउटसाइड द बॉडी रादर इनटू द गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी. दूसरी के गैमीट्स जो एपिडर्मल प्रोड्यूस होते हैं और रिलीज आउटसाइड होते हैं और गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में नहीं होते. और थर्ड चीज इनकी मेसोगुलिया जो होती है वो असेलुलर, देयर इज नो mesogulia, no cell in the mesogulia. और ये मोस्ट हाइड्रोजोआ लिव इन कॉलोनियल पोलिप. जैसे आप ये देख सकते हैं ओबलिया का मिसाल कि ये कॉलोनी में रह रहे हैं, इकट्ठे रह रहे हैं. इन विच मे बी स्पेशलाइज फॉर फीडिंग, producing medusa by budding or defending colony. Look at this one कि ये बर्ड जो है ना सेपरेट होकर ये मेडुसा प्रोड्यूस हो रहा है, और फिर ये सेम स्पर्म एग्स और सेम ब्लास्टुला प्लेन्युला, और उससे जो है ना सीसाइल प्लेन्युला, फिर इनमें और जो है ना बर्डिंग हो रही है, यहाँ ये मेच्योर हो रहे हैं. मोर ओवर इन ओबिलिया, जैसे ये आप देख रहे हैं, कॉमन इन ओबिलिया ए कॉमन मेरीन नीडेरियन प्लेन्युला डिलीवर इनटू फीडिंग पोलिप. के प्लेन्युला एक फीडिंग पोलिप में डिफरेंट होता है, उसको हम क्या कहते हैं, गैस्ट्रोजोइड या हाइड्रेंथ कहते हैं. और उस गैस्ट्रोजोइड्स हैव द टेंटिकल, और ये टेंटिकल्स के थ्रू दे फीड ऑन माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म इन द वाटर. और स्केलेटन का जो प्रोटीन होता है वो भी जो है ना सीक्रेट होता है. मींस दीज टेंटिकल सीक्रेट्स स्केलेटन ऑफ प्रोटीन काइटिन. उस स्केलेटन का नाम जो है ना पेरिसार्क कहते हैं, उनके अराउंड जो है ना वो पेरिसार्क होता है. ग्रोथ ऑफ ओबलिया कॉलोनी रिजल्ट फ्रॉम द बर्डिंग ऑफ द ओरिजिनल गैस्ट्रोजोइड. के गैस्ट्रोजोइड जो है ना उनकी बर्डिंग होती है, तो इस तरह से दूसरा प्रोड्यूस होता है, जैसे ये भी हो गया, ये भी हो गया. तो इस तरह से बर्डिंग के थ्रू जो है ना ये कॉलोनी जो है ना होते हैं. और दे हैव द रूट लाइक प्रोसेस ग्रो इनटू एंड हॉरिजॉन्टल अलोंग द सबस्ट्रेट. रूट लाइक प्रोसेस इनमें होता है.
दे एंकर द कॉलोनी एंड गिव राइज टू द ब्रांच कॉलोनी। इस तरीके से एक और कॉलोनी की ब्रांच बडिंग होकर वो दूसरे से एंकर होकर और एक और ब्रांच डेवलप करती है। गैस्ट्रोजोइट्स आर मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ पोलिप इन कॉलोनी। के इन ओबलिया की कॉलोनी में जो कॉमन टाइप ऑफ पोलिप है वो गैस्ट्रोजाइड है। ओबलिया ग्रो एंड ओबलिया ग्रो करते हैं और उनमें एक और जो है ना बॉडी फॉर्म प्रोड्यूसर, उसे हम गोनोजाइड्स कहते हैं। गोनोजाइड्स आर गोनेंजियम रिप्रोडक्टिव पॉलिप दैट प्रोड्यूस मेडुसा बडिंग। जैसे लुक एट दिस वन के इनको के हम क्या कहते हैं, मीन्स वो कॉलोनी का हिस्सा या पोलिप जो जिसको हम गोनोजॉइड या गोनेनिज्म कहते हैं, वो उसमें बडिंग होती है, उस बडिंग से मेडुसा प्रोड्यूस होता है। मेडुसा स्मॉल होते हैं और जब मैच्योर होते हैं तो वो ब्रेक फ्री अलग हो जाते हैं। लुक एट दिस वन के दीज आर द स्मॉल मेडुसा। लुक एट दिस वन, जब ब्रेक फ्री होते हैं, बड़े होते हैं तो ब्रेक फ्री हो जाते हैं, फिर वो मेडुसा सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा और उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे आप देख रहे हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से फिर वही एक और पोलिप जो है डेवलप होगा। एक और मिसाल है गोनियोनिमस। ये भी एक हाइड्रोजोआ है इन विच मेडुसा स्टेज इज प्रीडोमिनेंट। ये मेडुसा स्टेज इनमें क्या है, प्रीडोमिनेंट है। मेरीन वाटर में पाया जाता है, अक्सर सी वीड के साथ अटैच होता है, अपने टेंटिकल्स सी वीड्स के साथ अटैच करता है। और बायोलॉजी ऑफ गोनिनो गोनोनियो गोनो गोनियोनिमस टिपिकल जो है ना हाइड्रोजोआ मेडुसा की बायोलॉजी वही सेम टू सेम है, और इनमें जो फर्क है कि वीलम इनमें प्रोड्यूस होता है। दे हैव द वीलम लाइक स्ट्रक्चर। लुक एट दिस वन, वीलम लाइक स्ट्रक्चर। वीलम इज प्रेजेंट इन मोस्ट हाइड्रोजोआ। के जो हाइड्रोजोआ का मेडुसा होता है उसमें वीलम होता है, लेकिन दूसरे अगर क्लास में जो मेडुसा होता है उसमें वीलम नहीं होता। ये फर्क होता है। नाउ वीलम कंसंट्रेट वाटर एक्सपेल्ड फ्रॉम द beneath the medusa to smaller outlet रेटिंग जेट प्रोपल्शन मूवमेंट। वीलम का काम क्या है कि वाटर को एक्सपेल करना, जिसकी वजह से जेट प्रोपल्शन मूवमेंट होती है और उनकी वो आसानी से जो है ना आगे अपनी बॉडी को निकला। माउथ इज एट द एंड ऑफ ट्यूब लाइक मेन्यूबिरम। इनका माउथ जो होता है, लुक एट दिस वन, ये ट्यूब है मेन्यूबिरम ट्यूब, उनके एंड में माउथ पाया जाता है, और वहाँ हो जहाँ माउथ होगा वहाँ उसको हम ओरल सरफेस कहते हैं। नाउ गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी लीड फ्रॉम इनसाइड ऑफ द मेन्यूब्रम इनटू 4 रेडियल कैनाल। इनको जो है ना इस गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में रेडियल कैनाल्स में 4 रेडियल कैनाल्स में डिवाइड होती है, और फर्दर एन इनसर्कलिंग रिंग कैनाल कनेक्ट्स रेडियल कैनाल। ये एक रिंग कैनाल है जो सारे रेडियल कैनाल को जो है ना, लुक एट दिस वन, दिस इज वन रेडियल कैनाल, दिस इज सेकेंड रेडियल कैनाल, थर्ड फोर्थ रेडियल कैनाल, इनको ये जो है ना रिंग कैनाल जो है ना कनेक्ट करता है। इन एडिशन टू नर्व नेट के साथ जो है ना इसमें नर्व रिंग भी पाए जाते हैं मेडुसा में। मीन्स गोनियोनिमस के में से जैसे नॉर्मली नर्व नेट पाए जाते हैं, उनके साथ नर्व रिंग भी पाई जाती हैं, और नर्व रिंग जो है ना वो स्विमिंग मूवमेंट में कोऑर्डिनेट करती है, उसमें हेल्प करते हैं। मोर ओवर इनके मार्जिन के अराउंड मिजोग्लिया जहाँ पाए जाते हैं वहाँ सेंसरी स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, उसे हम स्टेटोसिस्ट कहते हैं। और स्टेटोसिस्ट
का मेन काम क्या है? एक तो उनकी स्ट्रक्चर स्टेटोसिस्ट जो है ना सराउंड करती है एक कैल्शियम कार्बोनेट को, जिसे हम स्टेटोलिथ कहते हैं, और स्टेटोलिथ की बाहर कवरिंग मिलाकर के ये स्टेटोसिस्ट बन गया। इनका मेन काम क्या है कि ग्रेविटी को जो पुल है उनको रिस्पॉन्ड करना या उनको जो है ना डिटेक्ट करना। दिस इनिशिएट नर्व इम्पल्स दैट मे चेंज द एनिमल स्विमिंग बिहेवियर, और इसकी वजह से वो स्विमिंग बिहेवियर पे बहुत ज़्यादा, स्टेटोसिस की वजह से स्विमिंग बिहेवियर पे बहुत ज़्यादा असर होता है। मोर ओवर गोनेट्स जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनील जो मेडुसा में वो हैंग फ्रॉम ओरल सरफेस से हैंग करते हैं। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं, लुक एट दिस वन, दिस ओवरी गोनियोनिमस डायोशस है, मीन्स मेल और फीमेल अलग हैं, और इससे मेल और फीमेल, मेल से स्पर्म, फीमेल से एग प्रोड्यूस होगा, उससे लार्वा डेवलप होगा, लार्वा सबस्ट्रेट के साथ अटैच होगा और उससे पोलिप फॉर्म होगा, तकरीबन 5 मिलीमीटर टाल जो है पोलिप फॉर्मेशन होगी। The polyp reproduce by budding to make more polyp and medusa। फिर सेम कहानी के पोलिप से मेडुसा प्रोड्यूस होगा, मेडुसा से पोलिप। थर्ड जो है जो मेंबर है वो हाइड्रा है, वो कॉमन फ्रेश वाटर हाइड्रोजोआ है, और जो है ना ये अक्सर पॉन्ड्स और स्ट्रीम में पाया जाता है। हाइड्रोजोआ डोंट हैव मेडुसा स्टेज, इनमें नहीं होती, और रिप्रोड्यूस बोथ असेक्सुअली बाय बडिंग साइड एंड सेक्सुअली और असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। हाइड्रा somewhat unusual hydrozoa because sexual reproduction occur in the polyp stage। वैसे नॉर्मली हमने ये पढ़ा कि पोलिप रिप्रोड्यूस असेक्सुअली और मेडुसा रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। यहाँ क्योंकि मेडुसा है भी नहीं, फिर भी पोलिप जो है ना सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है एज वेल एज असेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है। फर्दरमोर अबाउट क्लास हाइड्रोजोआ के टेस्ट्स आर कोलोनियल, और उनमें माइटोटिक डिवीजन होती है, जिसकी वजह से इंटरस्टिशियल सेल डेवलप होते हैं एपिडर्मिस से, और स्पर्म फॉर्मेशन मियोसिस के थ्रू होती है, वो भी टेस्टिस में। अ मैच्योर स्पर्म exit from the test through the temporary opening for a brief time। थोड़े वक्त के लिए टेस्टिस में से ओपनिंग होती है जिससे स्पर्म डिस्चार्ज होते हैं। ओवरीज फॉर्म फ्रॉम द इंटरस्टिशियल सेल, और वन लार्ज एग फॉर्म्स पर ओवरी, एक ओवरी से एक बड़ा एग डेवलप होता है, और एग जो है ना उनमें यॉक भी पाई जाती है, और ये जो है ना गैस्ट्रोडर्मल सेल से ताल्लुक रखते हैं। सो ओवरिन सेल डिसइंटीग्रेट, वो अलग हो जाते हैं, और इसके बाद जिन स्पर्म और एग की जो है ना फर्टिलाइजेशन होती है, और एम्ब्रो ड्राफ्ट फ्रॉम द पेरेंट्स, और विंटर हैचेस इन द स्प्रिंग, मीन्स विंटर में जो है ना ये ड्रॉप होते हैं, हैचेस इन समर, स्प्रिंग में, और इसके बाद वो एडल्ट में डेवलप हो जाते हैं। लार्ज ओशनिक हाइड्रोजोआ बिलोंग टू ऑर्डर सिफिनोफोरा। जो बड़ा जो ओशनिक हाइड्रोजोआन है वो किससे ताल्लुक रखते हैं? सिफिनोफोरा से। और दीज कॉलोनी आर एसोसिएशन ऑफ न्यूमरस पोलिपॉइड एंड मेडुसाइड इंडिविजुअल, और उनमें कुछ पोलिप होते हैं, उनको डिक्टाइलोजॉइड्स कहते हैं। डिक्टाइलोजॉइड्स में टेंटिकल्स पाए जाते हैं, और टेंटिकल कंटेन द नीडोसाइड्स फॉर कैप्चरिंग द प्रे। अदर पोलिप आर स्पेशलाइज्ड फॉर डाइजेस्टिंग प्रे, जिसे इन वेरियस मेडुसा इंडिविजुअल फॉर्म स्विमिंग बेल्स, सेक फ्लोट, आइल फ्लोट, जेल लीफ लाइक डिफेंसिव स्ट्रक्चर एंड गोनेड। तो यहाँ हमने पिछले स्लाइड में और यहाँ जो है ना कुछ और कॉन्सेप्ट पढ़ा। एक ये तो पढ़ा
कि पोलिप का एक खास फॉर्म होता है जिसे हम गैस्ट्रोजाइट कहते हैं। दूसरा एक फॉर्म होता है जिसे हम जो है ना गोनोजाइट्स कहते हैं। एक और फॉर्म होता है जिसे हम यहाँ जो इस स्लाइड में पढ़ा वो डिक्टाइलोजाइट्स होते हैं। तो ये डिफरेंट पोलिप के फॉर्म हैं। ये सेम स्ट्रक्चर हम वहाँ रिपीट कर चुके हैं। लेट्स डिस्कस द क्लास स्टारोजोआ। स्टारोजोआ में जो भी मेंबर्स हैं दे आर ऑल मैरीन, और पुरानी क्लासिफिकेशन में वो आर्डर स्टारोमेड्यूसा से बिलोंग करते थे और उसको क्लास स्काइफोजोआ में रखा गया था। लेकिन अब जो है ना उसको सेपरेट करके इंडिपेंडेंट क्लास स्टारोजोआ का स्टेटस दिया था। स्टारोजोआ में मेडुसा स्टेज नहीं होती, ऐसा जो है ना ऑलमोस्ट ऐसा ही है, लेकिन उनमें एक रिजेंबल्स होती है, स्टेज नहीं होती लेकिन उन जैसी होती है। बॉडी फॉर्म इज इन द शेप ऑफ गॉबलेट्स। लुक एट द गॉबलेट विद इन सीरीज ऑफ 8 टेंटिकल्स। ये टेंटिकल्स 8 टेंटिकल्स होते हैं। लुक एट दिस वन। अटैच टू सबस्ट्रेट यूजुअली रॉक और सीवीड्स। आप देख सकते हैं ये सारे रॉक्स के साथ अटैच हैं। स्टारोजोआ में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ना रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ नॉन सिलिएट क्रॉलिंग प्लेन्युला लार्वा। इनमें प्लेन्युला लार्वा और प्लेन्युला लार्वा अटैच होता है सबस्ट्रेट में और मैच्योर होकर एक एडल्ट बनाता है। इवन दो द प्लेन्युला एबिलिटी टू डिस्पर्स में बी लिमिटेड, एडल्ट हैव ऑब्जर्व्ड somersaulting by alternatively attach their base and tentacle। के इनमें जो लोकोमोशन हो रही है या मूवमेंट हो रही है वो समरसॉल्टिंग हो रही है। Rarely they have been observed drifting freely in water। पानी में ऐसे जो है ना ड्रिफ्ट करते हैं। जैसे ड्रिफ्टिंग का मकसद ही ये है कि पानी के थ्रू या किसी और के थ्रू जो है ना मूव करें। और तकरीबन इस क्लास में 100 से ज़्यादा स्पीशीज़ डिस्क्राइब की गई हैं। अक्सर जो है ना हायर अल्टीट्यूड या अटलांटिक ओशन में या वेस्टर्न पैसिफिक कोस्ट जो अमेरिका के वहाँ पाए जाते हैं। कुछ एंटार्कटिक के पानी में पाए जाते हैं। कुछ समंदर के अबाइसल डेप्थ जो पैसिफिक समंदर का अबाइसल डेप्थ है वहाँ भी पाई जाती हैं। नाउ थर्ड क्लास इज क्लास स्काइफोजोआ। ये क्लास स्काइफोजोआ इनको हम ट्रू जेलीज कहते हैं, जेली फिशेस। लुक एट दिस, जेली फिश इसी से ताल्लुक रखता है। ये इंटरेस्टिंग भी है और हम इसे जो है ना एज ए टेक्स्ट बुक या लैब स्पेसिमेन के तौर पे यूज़ करते हैं। इनमें जेली फिशेस में जो डोमिनेंट स्टेज है लाइफ हिस्ट्री में दैट्स अ मेडुसा। वहाँ हमने हाइड्रोजोआ में मेडुसा क्या था, या तो नहीं था या कम था। और दूसरा जहाँ अगर हाइड्रोजोआ में मेडुसा था तो वहाँ उन मेडुसा में विलम नहीं था। क्या नहीं था? विलियम नहीं था। और वहाँ जो उनके जो मीजोगोलियात थे उनमें जो है ना सेल पाए जाते, इनमें सेल नहीं पाए जाते, इनमें सेल पाए जाते हैं। और इनके नीडोसाइट जो सेल हैं वहाँ जो है ना दूसरे हाइड्रोजोआ में डिस्कस किया कि वहाँ एपिडर्मिस में पाए जाते हैं, यहाँ गैस्ट्रोडर्म में। तो ये मेडुसा के दो डिफरेंट क्लासेस से हैं, तो उनमें जो डिफरेंस है। स्काइफोजन्स आर हार्मलेस टू ह्यूमन, लेकिन कभी कभी वो बाइट करके स्टिंग करके अनप्लेजेंट सिचुएशन क्रिएट करते हैं। अदरवाइज जो है ना ये जो है ना हार्मलेस होते हैं। ये एक मस्टी गैस
सो कॉल स्टिंग नीटल कॉमन अटलांटिक स्काइफोजोआ है, जिनकी लेट समर में पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जो स्विमर हैं उनके लिए नुकसानकार होते हैं। कॉमन जो जेलीफिश है उसे हम अरीला कहते हैं। अरीला इज अ कॉमन स्काइफोजोआ बोथ फाउंड इन पैसिफिक एंड अटलांटिक coastal waters of North America. Margin of its medusa has a fringe of short tentacles. Look at this, ये short tentacles पाए जाते हैं। Mouth of medusa lead to the stomach, कि इनके माउथ जो है ना वो माउथ लीड करता है कहाँ, स्टमक में लीड करता है। And that also have the radial canal lead from the gastric pouch to the margin of the bell. In Arila, but not all skyphosons, the canal system is extensive, branched, and lead to the ring canal around the margin of medusa. Gastrodermal cell of all Scyphosa possess cilia, continuously circular seawater and partially digested food. Arila is plankton feeder. ये प्लांकटन को खाते हैं। प्लांकटन जो है ना एक स्लो मूविंग होते हैं और ये पानी में, समुद्र के पानी में पाए जाते हैं। Cilia carry the food to the margin of medusa. 4 fleshy lobes called oral lobes, इनमें oral lobes होते हैं, hang from the manubrium and scrape the food from margin of the medusa. Cilia on the oral lobes carry food to the mouth. Again, ये इनमें आप देख सकते हैं रिंग कैनाल, radial canal, marginal tentacles, oral lobes. These are the four oral lobes, gastric pouch, gastric filaments, and gonads. Next class, क्यूबोजोआ। ये पहले एक आर्डर था स्काइफोजोआ का, क्यूबोजोआ, लेकिन अभी इनको इंडिपेंडेंट क्लास बनाया गया है। The medusa is cuboidal and tentacle hang from this cuboidal structure, और यहाँ tentacles hang कर रहे हैं from each corner. Polyps are very small. इस क्लास में पोलिप यहाँ तो होते नहीं, या अननोन है, यहाँ होते हैं तो वो स्मॉल होते हैं। ज़्यादातर ये मेडुसा फॉर्म में होते हैं और ये एक्टिव स्विमर हैं और वार्म ट्रॉपिकल वाटर में पाए जाते हैं। इनमें डेंजरस निमाटोसिस्ट पाए जाते हैं जो ह्यूमन के लिए हार्मफुल भी हो सकते हैं। क्लास एंथोसोआ। Member of this class are colonial or solitary or lake medusa. या तो कॉलोन में इकट्ठे होते हैं या अकेले पाए जाते हैं और इनमें कोई मेडुसा नहीं होता, और इनके नीडोसाइड सेल में नीडोसिल नहीं पाई जाती। इनमें सी एनीमोन और स्टोनी और सॉफ्ट कोरल, और ये एंथोजोआ मैरीन वाटर में पाए जाते हैं, डेप्थ में पाए जाते हैं। एंथोजोआ पोलिप, इनका पोलिप हाइड्रोजोआ पोलिप से फर्क है। मीन्स पोलिप एंथोजोआ में भी है, पोलिप जो है ना हाइड्रोजोआ में भी, लेकिन इनके बीच में 3 डिफरेंसेस हैं। वन इज दैट वन, द माउथ ऑफ एंथोजोआ लीड टू द फेरेंक्स। एंथोजोआ में जो पोलिप है वो लीड टू द फेरेंक्स करता है, which is an invagination of body wall that lead into the gastrovascular cavity. Second फर्क है mesenteries या membrane that bear cnidocytes and gonad on the free edges divide the gastrovascular cavity into section. ये दूसरा फर्क। तीसरा, mesocolia contain amoeboid mesenchyme cell. ये 3 जो है ना
फीचर्स हैं जो होते हैं एंथोजोआ पोलिप में, लेकिन हाइड्रोजोआ पोलिप में नहीं होते। Externally, anthozoa appear to show perfect radial symmetry. This is radial symmetry like structure. Internally, mesenteries and other structure convey biradial. अगर अंदर से देखें, बाहर से रेडियल लेकिन अंदर से देखेंगे तो आपको ये बायरेडियल, एक्सटर्नली इट्स रेडियल सिमेट्री, लेकिन इंटरनली mesenteries की वजह से या अदर स्ट्रक्चर की वजह से ये बाय रेडियल स्ट्रक्चर है या बायरेडियल सिमेट्री। Sea anemones are solitary, frequently large. Some attach to solid substrate, some burrow in soft substrate, and some live in symbiotic relationship. के सबस्ट्रेट के साथ अटैच होते हैं, बारो होते हैं किसी सॉफ्ट सबस्ट्रेट में या किसी और एनिमल में सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहते हैं। नाउ द पोलिप अटैच टू इट्स सबस्ट्रेट बाय पेडल डिस्क, उनकी पेडल डिस्क होती है, लुक एट दिस, पेडल डिस्क की वजह से वो अटैच होते हैं। और ओरल जो डिस्क है कंटेन माउथ, ओरल डिस्क, दिस वन ओरल डिस्क कंटेन माउथ इन, और उनके अराउंड जो है ना ये टेंटिकल्स होते हैं, ओरल टेंटिकल्स होते हैं। एट वन आर बोथ एंड ऑफ सिल्ट लाइक माउथ इज syphnoglyph, which is ciliated tract that move water into the gastrovascular cavity to maintain hydrostatic skeleton. Mesenteries are arranged in pair, इनमें जो mesenteries हैं पेयर में अरेंज होते हैं। Some are attached at the body wall, at the outer margin and to the pharynx along the inner margin. Other mesenteries attach the body wall but are free along the entire inner margin. As I told you, they are living in some sort of association with the other organism, and they have also thread-like acontia at the end of mesenterial filament bear cnidocyte cell. The muscles fibers are largely gastrodermal, और इनमें longitudinal muscles band जो है ना वो restricted to the mesenteries हैं, और circular muscles are in gastroderm of the column. When threatened, जब कोई खतरा होता है तो sea anemone contract longitudinal fiber allowing water to escape from the gastrovascular cavity. This action caused the oral end of column to fold over the oral disc and sea anemone appears to the collapse. बिल्कुल वो कम हो जाता है, और again they re-establish their body through uptake of water. अब पानी जो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है सिफ्नोग्लाइफ के थ्रू वो दोबारा जो है ना वो री-एस्टेब्लिश कर सकते हैं। लेकिन सी एनिमल जो है ना उनकी लोकोमोशन लिमिटेड लोकोमोशन होती है। दे ग्लाइड ऑन देयर पेडल डिस्क, क्रॉल ऑन देयर साइड और वॉक ऑन देयर टेंटिकल, ये तीन इकसाम के। और जब ये इनको डिस्टर्ब किया जाता है दे कैन स्विम, बॉडी को थ्रेश करके वो स्विम भी करते हैं। तो पेड इनमें क्रॉलिंग, वॉकिंग, इस तरीके से ग्लाइडिंग मूवमेंट होती है और स्विमिंग होती है। Some sea anemones float using gas bubble held within the fold of paddle disc. Or sea anemone feed on invertebrate and fishes. Tentacle capture prey and draw it toward the mouth. इनमें radial muscles fiber in the mesentery open the mouth to the receive food. Animals show both sexual and asexual reproduction. इनमें दोनों असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ना कोई पीस जो है ना पेडल डिस्क का ब्रेकअप हो जाता है और वो जो है ना अगेन दैट ग्रोज इनटू द पोलिप। तो
इस न्यू इंडिविजुअल को हम पेडल लेसरेशन कहते हैं। मोreover, longitudinal or transverse fission may divide the one individual into two के longitudinal या ट्रांसवर्स फिशन की वजह से भी जो है ना इनमें दो हिस्से हो सकते हैं और उससे उन हिस्से से एक कंप्लीट बॉडी रीजनरेट हो सकती है। Unlike other cnidarian, anemone may be either monoecious or dioecious। ये hermaphrodite भी है और heteraphrodites भी हैं। In hermaphrodite or monoecious, male gamete mature earlier than female gametes, so self fertilization does not occur। और जब मेल गैमीट पहले डेवलप होते हैं उसे हम प्रोटोएंड्री कहते हैं। गोनेट्स अकर इन लॉन्गिट्यूडनल बैंड बिहाइंड द मेसेंट्रल फिलामेंट्स। फर्टिलाइजेशन मे बी एक्सटर्नल or within gastrovascular cavity। Cleavage result in the formation of planula, which develop into a ciliated larva that settle to the substrate, attach and eventually form adult और अदर जो एंथोजोआ हैं वो कोरल हैं जो कोरल रीफ जिससे बनती। स्टोनी कोरल form the coral reefs except for lacking सिफोनोग्लाइफ are similar to the anemone। सिर्फ फ़र्क ये है कि जो कोरल्स और सी एनोमन में उनमें सिफिनोग्लाइफ का फ़र्क होता है। एंड देयर कॉमन नेम ड्राइड फ्रॉम द कप लाइक कैल्शियम, उसमें कैल्शियम कार्बोनेट का एक्सोस्केलेटन होता है जो उनकी बॉडी सीक्रेट करती है। When threatened polyp retreat into the protective exoskeleton, जब उनके कोई थ्रेट आता है तो वो उस स्टोनी जो एक्सोस्केलेटन उसमें प्रोटेक्शन के लिए चले जाते हैं। Sexual reproduction is similar to that of anemones। Asexual budding produce other member of colony। Many cnidarians develop close relationship with unicellular algae। के कुछ cnidarians का algae कुछ नीडोरियन का अल्जाई के साथ एसोसिएशन होती है। उस एसोसिएशन को हम क्या कहते हैं? ज़ूएंथिली या एंथिला, ज़ूएंथिला। So zooxanthilla is association of stony coral and algae। Photosynthesis by dinoflagellates। Zooxanthilla often provides significant amount of organic carbon for coral polyp and metabolism by the polyp produce algae with nitrogen phosphorus byproduct। ये दोनों के सिम्बायोटिक एसोसिएशन दोनों को हेल्प करती है जो है ना। It's thought that 90-meter depth limited for the reef building corresponds to the limit to which sufficient light penetrates to support zooxanthilla photosynthesis। Environmental disturbance such as increased water temperature can stress and kill the zooxanthilla and result in coral bleaching। And colorful octocoralline corals are common in warm water। They have 8 pinnate feathers or feather-like tentacle, 8 mesenteries and 1 syphnoglyph। The body wall of the member of colony are connected and mesenchyme cell secrete an internal skeleton of protein or calcium carbonate। Sea fan or sea pan, sea whips, red coral and arginopipe coral are member of this group। ये सारी इंफॉर्मेशन जो है ना हमने इन दो किताबों से ली है। थैंक यू फॉर लिसनिंग।